Hello everyone, Assalamu alaikum. I hope you're doing well. My name is Hajra Nauman and welcome back to my channel. Please ignore my left ankh. I have a severe infection going on, or what choti hui hai, and it's watery and it's producing the pus thingy. So but I really wanted to record this video because मैंने अपने Instagram पे poll लगाया था for all the questions you guys have regarding laser session, body hair removal session. So I'm going to answer some questions जो आप लोगों ने पूछे हैं. If you still have any question, do comment down in the comment section. I will answer you. अगर वो question different हुआ from all the questions that I have answered, तो yeah, let's begin. Before I start, I would like to tell you a little bit about my experience. I started doing hair removal about 2 years back. मैंने मुंह से शुरू किया था अपने, especially my chin area, because I had hirsutism because of my hormonal imbalance, and I used to get a very very thick hair, like a beard line. यहाँ पर 3-4 बाल होते थे. I used to wax. It did not help. I used to be itchy, or like skin के अंदर ingrown बाल होता था. So whatever I did wasn't really helpful. Waxing के बाद भी my hair used to come back after a day or two. So somebody suggested me कि आप laser कराओ. I went for laser for my face. I felt a huge difference after 1-2 sessions. मेरे बाल बहुत light हो गए. मेरी discoloration यहाँ पर जो थी वो ख़त्म हो गई. You can see it's pretty clear now, alhamdulillah. और I will show you a picture of how my skin used to be यहाँ पर, if I can find it in my gallery. So it started off. So I shifted to body after like few months. I have taken about I think 20-25 sessions. I have lost count. I go every 2 months now. I used to go every month for I think 8 sessions. उसके बाद मैंने delay करना शुरू कर दिया because उन्होंने कहा था कि अब आप gap से आओ because you have taken the mandatory sessions to reduce the growth. I do feel my hair has reduced a lot in this time space of growing. वरना आपको वैक्सिंग के 4 हफ्तों बाद ही आपको वो कांटे नजर आना शुरू हो जाते थे वैक्सिंग के. इसमें यह है कि माय हेयर इज़ प्रिटी ग्रोथ इज़ प्रिटी स्लो, और 2 महीने बाद 1-2 बाल आते हैं, तो दैट्स अ सुकून फॉर मी. नो, इट डज़ नॉट डैमेज योर स्किन. आई बिलीव बल्कि आपकी स्किन को वो लाइट करता है, आपकी पिगमेंटेशन बेटर करता है, आपकी स्किन सॉफ्ट हो जाती है after laser. So I haven't faced any skin issues, alhamdulillah, till date. I think it's almost been a year and a half now. और so yeah, आप eventually आपका जो follicle की जो आपके जो छोटे-छोटे सुराख होते हैं, आपके जो pores होते हैं, वो भी काफ़ी diminish हो जाते हैं. अभी खैर मेरी टांगों को इतने नहीं हुए, but आपको लगता है कि स्किन बहुत सॉफ्ट सी हो गई है. So I have not heard any close personal experience of skin damage. ना ही मैंने खुद experience किया है. So to answer your question, skin damage नहीं होती unless they burn your skin, खुदा ना खास्ता, and they are not professionals. तो yeah, you're good to go. नहीं होते. वो आपको feel होता होगा शायद शेविंग से आपको लगता होगा, बट नहीं होता, क्योंकि आप शेविंग के बाद लेज़र लगा रहे होते हो, तो शेविंग डजंट गिव यू दैट सख्त बाल वाली फील, बिकॉज उस पर लेज़र लगी होती है. मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ. मेरे बाल हल्के हुए हैं, पतले हुए हैं. इवन इफ द ग्रोथ इज़ देयर आफ्टर 2 months, द हेयर इज़ वेरी थिन एंड इट्स हार्डली विजिबल. सो टू आंसर योर क्वेश्चन, ऐसा नहीं होता until unless there is a driving force, there's a hormonal imbalance, or there is something else going on in your body which is causing that hair to grow back thicker. So you need to check that. And laser itself ये चीज़ नहीं करता जो आप बात कर रही हो. If you do not feel that your hair growth is reduced, change the doctor, change the clinic maybe, or tell them that you're facing this issue, so maybe they try a different technique on your body. Or if also do check your hormones if they're fine, क्योंकि क्या होता है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी हेयर ग्रोथ ख़त्म नहीं होती, और आपकी हेयर ग्रोथ वहीं की वहीं रहती है. या तो फिर कोई टेक्निक ह्यूमन एरर है, टेक्निक सही यूज़ नहीं हो रही, या वो आपको फ्रिक्वेंसी बहुत कम यूज़ करें, उसका फ्रिक्वेंसी बढ़ा दें,
तो ये कुछ चीज़ें हैं, और फिर भी असर नहीं होता तो ट्राई अ डिफरेंट क्लिनिक. एंड बट फर्स्ट ऑफ ऑल डू चेक योर हेल्थ कि कोई हार्मोनल इम्बैलेंस वाली चीज़ तो नहीं है. ज़रूरी नहीं है यू हैव PCOS टू हैव हार्मोनल इम्बैलेंस. आपका हार्मोनल इम्बैलेंस नॉर्मली भी हो सकता है बिकॉज हम चलते ही हार्मोन के ऊपर है, हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा हार्मोन से भरी हुई है. सो ये कुछ IPL इज़ बेसिकली अ शॉर्टर वर्जन, होम वर्जन ऑफ द bigger laser machines that the clinics have. It is effective but it's a slower process. मतलब अगर आप session लोगे किसी clinic पे जाके तो that is going to be a good response than the IPL at home. IPL आप I think हर हफ्ते करते हो, हर महीने करते हो. वो अगर एक आपका क्लिनिक का सेशन है तो आई थिंक 4 आपके IPL के सेशंस होंगे टू गिव द सेम रिजल्ट. IPL आई वुड रिकमेंड इज़ बेटर इफ़ यू टेक सेशंस पहले प्रॉपर लाइक 8 से 10 सेशंस ले लो लेज़र के एंड देन शिफ्ट टू IPL जब आपने रीटचिंग करनी होती है अपने बॉडी पे या कहीं पे जाके आपको मैक्सिमम बाल पतला हो चुका हो और जहाँ जहाँ बाल था वहाँ पर आप IPL यूज़ कर लो. तो आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू परचेज एन IPL नाउ बिकॉज आई हैव टेकन गुड सेशंस. और मेरे जब कहीं कहीं बाल आते हैं तो इंस्टेड ऑफ going all the way to the clinic and getting the entire session, entire body done, even though मेरे बाल नहीं भी हैं कुछ जगहों पे, तो मैं IPL से टी करके उनको fix out कर दूँ. It is not a pain-free process. You do feel a little burn. You do feel little pinching somewhere here and there. आपको bikini line पे feel होता है, pain feel होती है थोड़ी बहुत. जो कर रहा होता है उस पर भी बहुत डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से कर रहे हैं. वो कंटिन्यूसली टी कर दैट कॉजेज यू मोर बर्निंग. अगर वो गैप से कर रहा है, प्रॉप को ठंडे होने का वेट कर रहा है तो दैट यू नो इज़ मोर बेयरेबल. कुछ जगहों पर ज़्यादा फील होता है, जिस तरह अगर आपकी स्किन के नीचे बिल्कुल हड्डी है तो आपको थोड़ा ज़्यादा फील होगा, फैट वाली एरिया पर फील नहीं होगा. बट इट्स बेयरेबल. आई थिंक इट्स बेटर देन वैक्सिंग. बट मैं अगर कहूँ कि 100% पेन फ्री है तो दैट्स नॉट ट्रू. और इफ़ यू हैव मोटा बाल कहीं पर, जिसका मेल की अगर लेजर होती है तो उनमें दर्द होती है, तो it's not pain free but it is bearable. or yeah, and it has good results. No, it doesn't affect your fertility, but it is recommended not to do laser if you're pregnant or if you are looking to conceive, क्योंकि रेडिएशंस वगैरह तो जाती हैं, लेज़र तो है, बट इट डजंट मेक यू खुदा न खास्ता इम्पोर्टेंट कि आप खुदा न खास्ता यू कांट कंसीव और यू नो कॉजेज प्रॉब्लम्स इन हैविंग अ बेबी और समथिंग लाइक वरना आपको पूरी इमाम कर रही है. So to answer your question, no, it does not affect your fertility. वरना डॉक्टर्स ये इनिशियली करा रहे होते हैं. दिस आई थिंक इज अ मिथ. लोग कहते हैं कि प्रॉब्लम होता है, हाई कराना नहीं चाहिए, बट I don't think it affects the fertility. I cannot state this as a fact, but jitna knowledge I have, jitna bhi I have seen, I don't think, my personal opinion, that it does not affect the fertility. Yeah, I can't tell you the prices exactly. मैं full body ही लेती हूँ उनका. I think 18,000 का full body होता है. I think उनके prices अब increase भी होंगे नए साल में. You can DM them and ask them, or you can visit their clinic. हर एक clinic का अपने charges होते हैं. So I can't really give you a quotation. If your hair does not fall out after a week, it's fine. I did not feel my hair falling out after a week of my session. Even though वो कहते हैं कि हो जाता है, they advise you to scrub your skin after 2-3 days. You get your laser session done. What I used to do is कि मैंने बल्कि notice किया कि when I get my facial hair lasered, तो मेरे बाल वापस आते हैं. I trim them. I use a trimmer and I trim them. तो उस ट्रिम के बाद बाल वापस बहुत देर बाद आता है. तो मे बी जो फॉल आउट नहीं होता वो मैं ट्रिम कर देती हूँ तो फिर ग्रोथ नहीं होती. मेरे बाल फॉल आउट नहीं होते, मेरे बाल इस तरीके से पुल आउट भी नहीं होते. तो इफ़ यू नॉट गेटिंग द फॉल आउट, इट्स फाइन. आई थिंक जस्ट ट्रिम योर फेस अगेन और ट्रिम योर बॉडी अगेन. वो जो बाल गिरना नहीं होगा वो ट्रिम हो जाएगा और दैट विल help you delay the process of new hair growth. मैं ये करती हूँ. So and if you have ये नहीं करना तो I have hormonal issues. Should I go for laser after I fix them? If you have hirsutism because of hormonal imbalance, laser is going to help you, क्योंकि laser के अलावा और कोई चीज़ नहीं है to reduce your hair growth permanently. वैसे बोलते हैं it actually helps you reduce your hair growth. Waxing से hair growth कम नहीं होती. बाल रूट से उगता है but eventually comes back. तो if you have hormonal balance, get your hormones fixed. और साथ if you have hirsutism, if you have thick baal, definitely go for laser. That was my main reason that I started doing my facial laser, क्योंकि I had very thick hair on my chin because of my hormonal imbalance.
तो आई स्टार्टेड यूजिंग लेज़र, और मेरे मुंह पे जो मेरा मोटा बाल था अल्हम्दुलिल्लाह दैट हैज़ that is finished after I think 2-3 सेशन के बाद ही वो हल्का हल्का पीच फा ज़्यादा I keep getting my laser done, but जो हार्मोनल इशू था, जो मोटा बाल आता था, that is when you opt for laser you have to say goodbye to waxing. You're not supposed to wax because आपने रूट को मेंटेन करना है अपनी स्किन के अंदर, क्योंकि वो उसी रूट को ही वीक किया जाता है लेज़र से. तो अगर आप एक सेशन लोगे लेज़र का फिर आप वैक्सिंग करा लोगे तो यू गोइंग टू पुल आउट द रूट जिसके ऊपर काम किया गया है लेज़र ने. तो फिर नेक्स्ट रूट फिर फ्रेश उगेगी, स्ट्रेंथनड उगेगी. यू डोंट नीड टू वैक्स, यू हैव टू मेक श्योर कि इफ यू ऑप्ट फॉर लेज़र यू आर ईदर गोइंग फॉर ट्रिमिंग, यू आर ईदर गोइंग फॉर शेविंग, व्हाटएवर सूट्स यू. आई यूजुअली ट्रिम क्योंकि शेव मुझे ब्लेड थोड़ा सा स्किन को तंग करता है. जो ट्रिमर्स होते हैं जो बाल ऊपर से कट कर देते हैं वो एग्जैक्ट आपको ब्लेड स्किन पे नहीं लगता, बट इट वर्क्स द सेम वे, आपका रूट पुल आउट नहीं करता. सो टू कट शॉर्ट, व्हेन यू ऑप्ट फॉर लेजर यू हैव टू से गुड बाय टू थ्रेडिंग, यू हैव टू से गुड बाय टू वैक्सिंग और एनी प्रोसीजर दैट पुल्स आउट द हेयर फ्रॉम द रूट. Laser does not increase your hair growth. Yes, you have to shave because you can't wax, क्योंकि आपने अपने roots को रखना है, बिकॉज लेज़र रूट्स पे ही काम करता है. इफ यू गोइंग टू वैक्स योर हेयर द रूट्स गोइंग कम आउट, लेज़र कहीं वर्क ही नहीं करेगा. सो यू नीड टू शेव, यू नीड टू ट्रिम योर हेयर ताकि रूट मेंटेन रहे और लेज़र रूट के ऊपर लगे. सो नहीं, बाल ग्रोथ ज़्यादा नहीं होती until unless you have hormonal issues. और लेज़र डज वर्क, बट कितना जल्दी वर्क करता है डिपेंड्स ऑन योर बॉडी, बट इट डज वर्क इवेंचुअली. इट हेल्प्स you reduce your hair growth, it helps you reduce your hair thickness. It's और क्या होता है, हाँ, ग्रोथ और थिकनेस ही होती है. इवेंचुअली आपके बाल पैचेस में ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं. जो आप वैक्सिंग से हर महीना वैक्स करवाते हो वो आहिस्ता आहिस्ता आपको 2-3 महीने सुकून से गुजर जाते हैं. When you start to see results, also where to get from, I get it from Skinthetics 360. It's in phase 6. यार आपको रिज़ल्ट आई थिंक 3 to 4 सेशंस के बाद नज़र आना शुरू हो जाता है. आपको एक सेशन के बाद भी काफ़ी विजिबल डिफरेंस फील होता है. इट डिपेंड्स बॉडी के ऊपर. कुछ के बहुत जल्दी बाल ख़त्म होते हैं, कुछ के बहुत देर बाद ख़त्म होते हैं. इट हैज़ समथिंग टू डू विद योर हार्मोन्स एंड मैनी अदर थिंग्स, क्योंकि हमारी लड़कियों का बहुत ड्राइविंग फोर्स हार्मोन होता है. तो कुछ लोगों के 8 सेशन के बाद ख़त्म होते हैं, कुछ लोगों के 15 के बाद होते हैं, कुछ के बाद 20 के बाद होते हैं. मैं अभी भी आई थिंक मेरे कोई 20 से 25 हो चुके हैं और मेरे बाल कम ग्रोथ में हैं. इट्स नॉट लाइक माई हेयर इज़ फिनिश्ड, they grow, but they grow patle and after a long period of time, so it's better than waxing, but it really depends body to body. क्या लिप्स पे लेज़र लाइट पड़ने से लिप्स का कलर डार्क होता है? आई थिंक लेज़र एक्चुअली हेल्प्स रिड्यूस पिगमेंटेशन, क्योंकि वो इट्स लाइक आपको वो हल्का हल्का सरफेस को साड़ा होता है, क्योंकि वो रूट्स को साड़ा होता है, तो आपकी पिगमेंटेशन बल्कि बेहतर होती है. until unless you burn your skin, discoloration नहीं होती. Whenever I get my laser done, I feel that my spots are even lighter, क्योंकि वो स्किन को भी हल्का सा तो लेज़र पड़ा होता है, इवन दो वो रूट्स पे इफेक्ट हो रहा होता है. तो टू आंसर योर क्वेश्चन, नो, इट डज नॉट डार्कन योर लिप्स और एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी. इफ़ खुदा ना खासा आपकी स्किन बर्न हो जाए उस लेज़र से, बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी का लेज़र यूज़ हो रहा हो, अगर वो बर्निंग हो जाए तब डिस्कलरेशन जो बर्निंग की होती है वो डेफिनेटली पड़ सकती है. अदरवाइज टू आंसर योर क्वेश्चन नहीं होते डार्क लिप्स. सो इट्स टेंशन फ्री वाली बात है. Which laser they do you feel hair reducing growth? मैं जो करा रही हूँ वो Soprano 2019 की मशीन आई थिंक उनके पास. तो द मशीन इज़ प्रिटी लेटेस्ट एंड इट्स गुड. Soprano का अच्छा रिजल्ट है. I do feel that my hair growth has reduced. I have taken I think about 25 sessions, but I still get hair growth. So I take sessions after every 2-3 months. अब हर महीने में नहीं लेती. और अभी मेरे बाल परमानेंटली ख़त्म नहीं हुए, बट हेयर ग्रोथ काफ़ी स्लो है बॉडी की और बाल बहुत पतला है. फेशियल जो हेयर है वो अभी भी उस तरीके से आते हैं, पतला आता है लेकिन आता है.
3-4 महीने बाद सेशन करवाना पड़ता है, बिकॉज you can't do waxing or you can't do threading, so you have to trim hair. Does hair grow back after some years? The hair does grow back. जो आपकी जो लेज़र सेशन होता है वो बहुत रिपीटेड आपने सेशंस लिए हों, फिर जाके यू कैन हैव ज़ीरो हेयर, बट उसके लिए बहुत सेशंस रिक्वायर्ड हैं. इट्स नॉट लाइक कि आप 1-2 सेशंस करोगे तो आपका बाल परमानेंटली ख़त्म हो जाएगा. यू नीड टू टेक अ लॉट ऑफ सेशंस टू एक्चुअली गेट रिड ऑफ द हेयर ग्रोथ. बट I haven't experienced zero hair growth, so I can't say it. So I think that the hair does grow back eventually if you stop taking sessions. But हाँ, sessions के अंदर gap आता है. It's like you take some sessions one after another month, and then you take sessions after 2 months and 3 months and 4 months. तो फिर time delay होता रहता है, but आपको सेशन लेना पड़ता है. और अगर until unless you have been doing laser for 2-3 years, तो maybe तब laser has not caused me acne, but it can, depends on if the laser doesn't suit you. I think मेरी बहन के साथ एक लेज़र से क्या हुआ था कि उसको थोड़ी सी एक्नी हो गई थी. मे बी कभी कभी if your skin is too sensitive it can give you acne, और मे बी उनका प्रॉप गंदा होता है तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम होता है. बट अदरवाइज आई डिड नॉट गेट एनी एक्नी, सो आई कॉन्ट रियली से. बट जितने भी जानने वालों से मैंने पूछा हुआ है, जिन लोगों ने करवाया हुआ है, दे हैव नेवर फेस समथिंग लाइक लेज़र से एक्नी हुई होगी. और मेरी बहन अभी भी करवाती है. वो आई थिंक एक दफ़ा उसको निकले थे छोटे छोटे दाने, बट अब नहीं निकलते, इवन दो शी स्टिल डज लेज़र. सो आई थिंक वो प्रॉप गंदा था और समथिंग लाइक दैट. बट आई डोंट थिंक यू गेट एक्नी फ्रॉम लेज़र until unless कोई बहुत ही आउट ऑफ द वे कोई चीज़ हो गई हो. इट डजंट रियली relate directly कि आप लेज़र करो तो एक्नी होगी, वो कोई और रीज़न होगी एडिशनल. यू डू नीड बूस्टर शॉट्स एवरी नाउ एंड देन, क्योंकि बाल वापस आता है कुछ लोगों का कुछ अरसे बाद. जैसे माई कज़न, शी गेट्स अ बूस्टर आफ्टर एवरी 6-8 months, जब उसको लगता है कि थोड़े थोड़े बाल वापस आ रहे हैं. बट द हेयर ग्रोथ गेट्स सो मिनिमल एंड द हेयर इज़ सो लाइट कि आपको इतनी टेंशन नहीं हो रही होती कि आपने फ़ौरन कराना है. एंड आई थिंक इवन इफ़ वी गर्ल्स गेट सुकून के 2 महीने 3 महीने एंड यू गुड टू गो गए यार, अच्छा ठीक है 3 महीने तो मतलब सुकून मैंने, क्योंकि वैक्सिंग से यही होता था कि महीने बाद 3-4 हफ्ते बाद आपके छोटे छोटे बाल नजर आ जाते थे और वो भी मोटे होते थे. सो लेज़र में ये है कि आपको गैप ज़्यादा मिल जाता है और जो बाल आता है वो बहुत पतला आता है और बहुत देर बाद आता है और दूर दूर कहीं आता है. तो आई थिंक इफ़ यू बिल्कुल ही आप छोड़ दोगे तो इवेंचुअली आपके बाल पतले वापस आ जाएंगे, मोटे वापस आएंगे, बट हो सकता है आ जाए वापस. सो इट्स बेटर टू गेट बूस्टर एवरी नाउ एंड देन, या आप खुद IPL घर पे ले लो आफ्टर गेटिंग अ प्रॉपर ट्रीटमेंट. So that is pretty much it. If you still have any questions, do comment in the below the video. I will answer if I haven't answered before. Thank you for even dropping these questions on my Instagram. If you haven't followed me on Instagram, here is my username. You can follow me on Instagram. I'm very active there. I post decent content, and thank you for bardashting me with this choti aankh. It is driving me crazy. You can see kitni laal hui hai. So yeah, I will see you next time inshallah. Take care, bye, and Allah Hafiz.